Good evening, everyone. This is Ekta Sehgal Malhotra, founder and Chief Strategy Officer, Motherhood Club. A very warm welcome to everyone on the Zoom call and the ones who are watching us on Facebook and subsequently on YouTube. We have all gathered here to celebrate World Poetry Day. What is poetry? Just few words, but with emotions, with expression. Some people make it rhyming. Some perhaps communicate a story through their poetry. Some convey a strong message, but all in all, poetry is one form. Whether we write or we don't, we are able to understand the emotions and the expression that poet is trying to convey. The reason that World Poetry Day got a designated day, poetry got a designated day starting 1999, was to promote poetry and to encourage people to express their emotions. We at Motherhood Club, through our Culture Corner, have paid a lot of thrust on poetry, story writing, and any form of creativity which enhances our understanding of literature. We use both languages, Hindi and English, but I am intentionally speaking in English because Vanessa does not understand Hindi. So, respecting every member who's present over here, I am at least keeping my part of the conversation in English. So, poetry is the common love that each one of us has and has really bonded each one of us at a different level altogether. You know, we've all passed through many emotions. We've conveyed our emotions, we've conveyed our frustration through poetry. We've appreciated each other through reading or reciting our fellow poets' poetry. And I think that really speaks volume about everyone, whether ones who are present at the Zoom call or otherwise, because it takes a lot to appreciate someone else. Forget about appreciating ourselves, but if we can appreciate others, I'm sure when we hear them recite our poetry, we also feel that, oh my God, did I really write this? And I'm sure this must have been an expression by many of us. Did I actually write this poem? How good am I? Or maybe sometimes we also feel, oh my God, what a terrible one we have written. But the fact of the matter is, we wrote what we felt. So it is not about a good poem or a bad poem. I think, as they say, that the beauty lies in the eyes of the beholder. So we may like some, we may not like some, but net, we all love poetry. So with this, I'm going to invite my co-host, Ila Pachori, the co-founder and chief happiness officer of Motherhood Club, to take this beautiful evening forward. Just to add, today we only have our outstation poets who have joined us here because the Delhi NCR poets are meeting for the very first time offline on Sunday, the 26th of March. So over to you, Ila. Thank you so much, Ekta. So, without wasting any more time, I welcome you all who are collected here on Zoom to celebrate World Poetry Day with us. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. कविता एक बहुत ही सशक्त माध्यम है अपने इमोशंस को बताने के लिए. Vanessa, let me translate it for you again. That poetry is a very strong medium to express our emotions and our feelings. I'm sure you'll agree to this. So without wasting any time, I would invite our dear friend Praveen Singh from Hyderabad to read what she has written today for all of us. Welcome, Praveen. Thank you so much, Motherhood Club. Every time I write, I get dished either by Ila or Ekta, and that's how my words begin to flow. I think that is what is required for some of us, and that is what I really like about this entire initiative of Motherhood Club and their initiatives and the events that happen. So today, when I was just sitting and thinking about what exactly I need to speak, we have had this International Women's Day where we all
decided to embrace equity, right? So I just wanted to reflect on a woman's journey with respect to this. I'll move over to Hindi now. कुछ घर प्रथा समाज में आज भी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, परंतु वर्तमान युग की नारी बहुत ही जागरूक और समझदार हो गई है। तो चलिए सुनते हैं नारी के इस सफर के बारे में उसी के जबानी। The title of the poem is based on the journey of a woman and शीर्षक है जन्म, जुनून और जंग, नारीत्व के ये है रंग। नन्ही नन्ही निगाहों से जब दुनिया देखी, नन्ही नन्ही निगाहों से जब दुनिया देखी, तो खुद से पूछी कितनी खुशियां लाई हूं। झूठी मुस्कुराहटों का सलाम था, मेरे आने का हर पैगाम बदनाम था। सौंधी सौंधी माटी की खुशबू भी मेरे कमरे में जैसे कि कब्र में दफन थी। खुद से पूछी क्या हंसी की उड़ान भर पाई हूँ। इमारतों में हर कोई नवाब था, इमारतों में हर कोई नवाब था। मेरे होने में, मेरे हर कोने में मेरे सांसों पर भी नकाब था। आंधी सी आती, आबरू से टकराती नजरों से मेरा हौसला हर बार था। खुद से पूछी क्या पंखों में साहस भर पाई हूँ। थक जाती हूँ सवालों से, थक जाती हूँ सवालों से, उलझ जाती हूँ बेचैन करने वाले घर वालों से। मेरे सिराने में ही मेरे सपनों का हो रहा कत्लेआम था। सीधी सादी शुरुआत में न चाहते हुए भी जमाने के हुक्म से मिला एक हमसफर था। खुद से पूछी क्या इससे रूह मिली या मिला पाई हूँ। चलती गाड़ी में मेरा चक्का घिसता रहा, चलती गाड़ी में मेरा चक्का घिसता रहा। फिक्र की क्या पूछे मेरा हमसफर, मेरे ऊपर तो मेरा पूरा सफर ही सवार था। आधी अधूरी लकीरों में मेरा डूबता शहर और हुकूमत किसी और की थी। खुद से पूछी क्या यही मेरे आसमानों का शहर जहां मैं आज आई हूँ। जिगर की जमीन पर जमाने का पहरा हो, जिगर की जमीन पर जमाने का पहरा हो। घाव कितना भी गहरा हो, पर्दों में इसे सजा कर रखना यही तो मेरा नसीब था। उम्र की दौड़ में और हुस्न की दर्पण में, उम्र की दौड़ में और हुस्न की दर्पण में अब मेरा चेहरा कुछ और था। उससे पूछी क्या खुद के लिए कुछ कर पाई हूँ। जंग में जश्न तो न था पर अपनी जगह बनाई थी, जंग में जश्न तो न था पर अपनी जगह बनाई थी। हर हार में जीत कमाई थी। क्या कहूँ ये मैं नहीं, मेरा जज्बा भी इतना शरीफ था। The last few lines, अंतिम पंक्तियों में ये कहूंगी, जरूरत ये है कि जिंदगी न जंग हो न बेरंग हो तो बस सपनों में सजा हो और संग हो और उसकी हिफाजत हो। रूह की इंसाफ में हौसलों की वकालत होगी, जो हर बार हार के न हारेगा उसी की अदालत होगी। जन, जुनून और जंग, नारीत्व के ये है रंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब लोग अनम्यूट करके क्लैप कर सकते हैं। प्रवीण कम लिखती है, लेकिन जब लिखती है तो ऐसे आप बम फोड़ती हैं। You really bring out a lot of meaningful poetry. Wonderful. Wonderful. And now I would invite our dearest friend from Singapore, Vanessa Jacqueline de Cruz, who is an awesome writer, a beautiful human inside out. Welcome, Vanessa. We are just eager to listen to what you have to say today. A very good evening to all of y'all.
Thank you for inviting me to this poetry event. The title of my poem today is entitled Shadows Whispering Away. I wrote this poem when, sorry, I wrote this poem actually when I was going to sleep and I was thinking about my breathing, about how our breathing is something that we take for granted because we are alive and we don't really think about our breathing. If you actually reflect on how we breathe, we can use our breathing as a powerful tool to keep our mind calm. To actually also think of how we can reach our dreams, our goals. So with no further ado, allow me to recite my poem. It's entitled Shadows Whispering Away. Don't look as the shadows whisper. I whisper your name. Your breath is like the shadows whispering away. I look at you, I burn for you until the end is near. Every time you breathe, a minute passes. Closer to death are you, as your breath is like the shadows whispering away. The end is nearing. You hang on, only hearing your breath like the shadows whispering away. Every night, I hear your breath. Every night, I burn. Every night, I dream until the end of time. I only hear your breath like the shadows whispering away. Will you ever wake up from your dream? As deeper you go, so is your breath, like the shadows whispering away. Whisper away, dream away, throw away. Breath who makes the shadows whisper away. If you wake up, your dreams will be answered. Just as your shadows whisper away that you are strong. Till then, dream away. Like a breath who makes the shadows whisper away. Thank you. Wow, that's amazing. So yeah, so we all dream, right? And we all fear not to achieve them. I think that's a beautiful, beautiful one. Beautiful. Thank you. Loved your lines, Vanessa. Loved your lines. अब हम कहाँ चलेंगे? हम चलते हैं भोपाल बबीता के पास. अनम्यूट कर लीजिए. और बबीता के बाद में मंजू आप अपनी पोएट्री रेडी रखिएगा. हेलो, आवाज आ रही है? जी. हाँ रही. तो मैं सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामना. और मेरी आज की कविता का शीर्षक है मुखौटे, जो मैंने कल ही लिखी. एक किसी मित्र ने फेसबुक पे एक फोटो डाला था, इसमें एक आदमी बहुत सारे मुखौटे बेच रहा था. तो कुछ पंक्तियां दिमाग में आई और इस कविता का जन्म हुआ. तो कविता का शीर्षक है मुखौटे. गली में आया एक सौदागर, लेकर मुखौटे तरह तरह के. भीड़ लग गई खरीदारों की. थे सब अपनी पहचान छुपाना चाहते, करने लगे मोल भाव के तकाजे. सबको अपनी सीरत और सूरत थी छुपानी. सबको अपनी सीरत और सूरत थी छुपानी. हर चेहरे हर मुखौटे की अलग अलग थी कहानी. कोई बोला मुझे जोकर का दे दो. कोई बोला मुझे जोकर का दे दो. घर जाकर बच्चों को खूब हंसाऊंगा. मुखौटे के पीछे अपनी बेबसी छुपाऊंगा. मुखौटे के पीछे अपनी बेबसी छुपाऊंगा. लड़की बोली मुझे हंसती औरत का मुखौटा देना. लड़की बोली मुझे हंसती औरत का मुखौटा देना. मायके में लगाकर जाऊंगी. दहेज के तानों के दर्द को माँ बाप से छुपाऊंगी. एक माँ बोली मुझे भी चाहिए एक मुखौटा बड़ा. मुझे भी चाहिए एक मुखौटा बड़ा, जो सदा मुस्कुराए, जिसमें छुप जाए हर पीड़ा.
फिर आए नेताजी, फिर आए नेताजी। एक सौदागर जोर से खिलखिलाया, बोला ये कैसी माया, तरह तरह के मुखौटों का मालिक मुझसे मुखौटा लेने आया। क्या बात। तरह तरह के मुखौटों का मालिक मुझसे मुखौटा लेने आया। ये तो है बच्चों के खिलौने, ये तो है बच्चों के खिलौने, तुम पर चढ़े मुखौटों के आगे ये है बोने, तुम पर चढ़े मुखौटों के आगे ये है बोने। डुगी बजा सौदागर बोला, डुगडुगी बजा सौदागर बोला, नहीं चाहिए कोई मोल, नहीं चाहिए कोई मोल, ऐसे ही दे देता हूँ मुखौटों का झूला, पर तुम सब जैसे हो वैसे ही दिखो, उतार फेंको झूठ का चोला। तुम सब जैसे हो वैसे ही दिखो, उतार फेंको झूठ का चोला। अपने सुख दुख व्यक्तित्व की पहचान कराओ, अपने सुख दुख व्यक्तित्व की पहचान करो। फिजूल है मुखौटे का झोल, फजूल मुखौटे का झोल, हमारी पहचान ही है अनमोल, हमारी पहचान ही है अनमोल। नमस्कार। बहुत सुंदर। क्या मैसेज कन्वे किया है आपने। नेताजी वाली लाइन तो बहुत ही सुंदर थी। सही में उन्हें मुखौटों की क्या जरूरत, सही में क्या जरूरत है, सही में। एक रियलिटी को बहुत खूबसूरती से आपने पेश किया है, वेरी नाइस। और अब मैं मंजू को इन 2 लाइंस के साथ में दावत दूंगी। 2-4 दिनों की जिंदगी 2-4 ही मेरे ख्वाब हैं, 2-4 दिनों की जिंदगी 2-4 ही मेरे ख्वाब हैं, 2-4 काम सबाब के कर जाऊं, मीन्स पुण्य के, 2-4 काम सबाब के कर जाऊं, बस यही इंतखाब है। मंजू है, शी इज अ डू गुडर, वो अपने लेवल पे बहुत काम करती हैं और बहुत परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही हैं अपने आसपास के समाज में। मंजू, जितनी अच्छी आप इंसान हैं उतनी अच्छी आप राइटर हैं। जल्दी से सुनाइए, आज आप हमें क्या सुना रही हैं। तो सभी को नमस्ते, सुनाई दे रहा है आप लोग को? जी बढ़िया। हाँ, तो सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। और वर्ल्ड पोएट्री डे के शुभ अवसर पर तथा नववर्ष के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आज सोचा कविताएं तो लोग तरह तरह के पेश करेंगे ही, लेकिन आज मैं कविता शब्द के माध्यम से कविता क्या है मैं इसे ही प्रस्तुत करती हूँ। मैं यानी कविता अपनी ही कहानी अपनी ही जुबानी सुनाना चाहती है। तो लीजिए पेश है। हाँ हाँ मैं कविता हूँ, हाँ मैं कविता हूँ, प्राणी जगत का भाव मैं ही हूँ, हर अंदाज की प्रेरणा स्रोत भी मैं ही हूँ, प्राणी जगत के स्वप्न में वास मेरा ही होता है, अनकहे अल्फाज भी मैं ही हूँ, बेजुबानों की जुबान भी मैं ही हूँ, संगीत भी मैं ही हूँ, नृत्य ताल में वास भी मेरा ही रहता है। हाँ मैं कविता हूँ। जीवन के हर रंग, जीवन के हर रंग मुझसे ही रंगे होते हैं, तभी तो हर पल गीत गुनगुनाती रहती हूँ, मुश्किलों के दौर में भी मुस्कुराने की कला में माहिर हूँ, आदि भी मैं ही हूँ अंत भी मैं ही हूँ, आदि भी मैं ही हूँ अंत भी मैं ही हूँ, मधुमालिनी की झूमर में भी तरंगित होती रहती हूँ, आदि भी मैं ही हूँ अंत भी मैं ही हूँ, मधुमालिनी के झूमर में तरंगित भी मैं ही होती रहती हूँ, तभी तो उस झूमर को देख गीत खुद ब खुद स्फुटित होते रहते हैं, सुरसरी बन जब बहती हूँ, हिलोरों में संगीत बन अटकेलियां करती रहती हूँ, सुरसरी बन जब बहती हूँ, हिलोरों में संगीत बन अटकेलियां करती रहती हूँ, उस संगीत का गीत भी मैं ही हूँ, तभी तो सभी को आनंदित किए रहती हूँ, बहुत बढ़िया। मात्र शक्ति की तेज भी मैं ही हूँ। यानी ये माँ वुमेन्स डे के लिए है, तो कुछ शब्द
मातृशक्ति के लिए। मातृशक्ति का तेज भी मैं ही हूँ, पिता के वाणी में गर्जन भी मैं ही पैदा करती हूँ। मातृशक्ति की तेज भी मैं ही हूँ, पिता के वाणी में गर्जन भी मैं ही पैदा करती हूँ। बच्चे की किलकारी हो या कोयल की मधुर तान, प्रकृति के हर अंश में वास मेरा ही रहता है। हाँ हाँ, मैं कविता हूँ। हाँ, मैं कविता हूँ। चंचल चपला की भांत सृष्टि के कोने कोने में भ्रमण करती रहती हूँ। छंदों में गीतों में बंधकर धारा प्रभाव बहती रहती हूँ। छंदों में गीतों में बंधकर धारा प्रभाव बहती रहती हूँ। हाँ, मैं ही कविता हूँ। हाँ, मैं ही कविता हूँ। ये थोड़े से शब्द मेरी तरफ से आप सबके लिए, जिसे कहते हैं शब्दों की सुरसरी बहाना, गंगा बहाना। ये मंजू से कोई सीखे। और बहुत ही खूबसूरत कविता आपकी। कविता सच में के बारे कविता में बहुत हाँ, सुंदर। साक्षात रूप में बना दिया, हमारे सामने प्रकट किया है। जी जी, And थैंक now यू। I would invite a very dear friend, Lakshmi Srinath, to come here and read her poem. थैंक कभी यू कभी वेरी पकड़ में मच। आती है लक्ष्मी, बहुत effective writer है, but like we wish to hear and read more of her, but she manages to slip away every time. But we are not going to let you go anywhere. I am unfortunately involved in so many things that I don't give enough time, and I really thank you and Ekta for inviting, nudging, calling me, and reminding me that this is something that I need to do. I really thank you all for being here today and taking your time out to give me your hearing and your time. Recently, first of all, I really enjoyed Manju Di. Your poem was really beautiful. आपकी हिंदी तो जैसे गंगा बहती है आपके मुंह से जब आप पोएट्री, आई मीन सुना है मैंने आपको, बट पढ़ा है रादर, बट सुनने में थोड़ा और आज मजा आ रहा है. एंड थैंक यू। लाइक बबीता जी, आपका भी बहुत ही सुंदर था. एवरीबडी वाज प्रेजेंटेड, इट्स रियली ब्यूटीफुल सो फार. I write in English, and that's where I feel easy to express. I was just going through a lot of, my work as a digital marketer involves a lot of being on social media and on Instagram. And मैं देख रही थी कि बहुत सारे आजकल के यूथ जो है वो उनको उनका नया करियर ऑप्शन इन्फ्लुएंसर बनना बन गया है, यूट्यूबर बनना है. तो मुझे हमेशा ये लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं अपने साथ, और इसी ऐसे ही इंस्पायर ये एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ. एंड आई हैव नेम्ड इट रियल टाइम और रील टाइम. Okay, wonderful. In the age of reels and likes, the youth have found their sights. No need for toiling long and hard. Just make some reels and be a star. What of content, you may ask? Doesn't it need some skillful task? No, just some foolish antics will do, and voila, you're famous too. They make it seem so easy to earn through Insta with a breezy. But what of hard work and toil? Is that not worth the while? They send wrong messages to peers that earning's easy with just cheers. But what of value and worth? Will they not lose their sense of mirth? Let's not be fooled by empty fame or fall prey to fleeting acclaim. True success requires hard work and the discipline not to shirk. Imagine if our teachers taught how to make reels and get more bought, and kids enrolled in YouTube U, I mean university there, and YouTube U,
to learn the fame and game that's anew. We'd have a world of influencers, but not a lot of real producers. For reels and likes are not enough to build a life that's strong and tough. Encourage the youth to learn skills that matter and truly earn, and success that's built on hard work's base and not on reels that have no grace. Let's value substance over style and build a future that's worth the while. In the end, it's not just fame, but the impact we make will remain. Thank you so much. Wonderful. Amazing, amazing poem. And Lakshmi, my daughter, is a luxury and lifestyle influencer, and she really works hard. And I always thought that fashion, luxury, lifestyle, they are very, very, what should I say, light and worthless subjects. But when I see her toil, I've started no, I really respect those who work hard. And let me tell you, making reels is not easy because I am there and I'm there in that forte. I see that happening all the time. Maybe what I came across was these young kids, you know, from small town 3-tier, 4-tier villages who make some, random content which does not have a message, which does not have. So there are so many of these young people who are aspiring to do something, and they're actually wasting their, if they don't have something to contribute, they are just trying to be there and trying to, put across content which is of not value. So I don't mean to negate what your daughter is doing, and it's a great job. It's a hard work. It's a lot of hard work. But I also feel that the younger generation, I talk to my niece of 6 years, 7 years old, and she wants to make videos of chocolates. So, that's where this is coming from. I think the current generation seeks a lot of attention. Yeah. Actually, yes. Yeah. They are attention hungry, and they are like hungry for that easy fame. So some get lucky, most don't. Yes. चलिए, अब हम आज की शाम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं बहुत आदर के साथ में कमल निमोदिया जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वो हमारे लिए आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर आए हैं, क्योंकि आज बिजी हैं वो थोड़ा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपकी कविता तो मैंने पहले पढ़ ली है, लेकिन सब सुनना चाहेंगे कि आज आप क्या कह रहे हैं। धन्यवाद इला। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। नव संवत्सर 2080 और चैत्र नवरात्रों की सबको शुभकामना। आज का दिन हम राजस्थान वालों के लिए और भी विशेष दिन है, क्योंकि आज की जो तीज है और तृतीय नवरात्रा दिवस है, ये तीज जो है गणगौर के रूप में पूरे राजस्थान में मनाई जाती है। और आज मेरी कविता की पृष्ठभूमि भी राजस्थान से ही है। मैं राजस्थान से हूँ। मुझसे थोड़ी डिस्टेंस पर जो एक माहौल है, वो इसका मैं आपको बता दूं कि पिछले साल के अगस्त में ये इला ने हमारे इस क्लब के ऊपर ही इसका एक प्रॉम्प्ट किया था, तो उसी पृष्ठभूमि पर मैंने ये कविता लिखी है। थोड़ा कल्पना कीजिए कि अभी मार्च का अंतिम सप्ताह जब होने वाला है, और आज से अप्रैल बीच में छोड़ दीजिए, मई और जून में राजस्थान कैसा रहता है। राजस्थान में विशेष करके जो आधा राजस्थान है रेगिस्तान, उसका मौसम कैसा रहता है, उसका माहौल कैसा रहता है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, सामान्य प्रतिकूल परिस्थितियों में वो अपना जीवन जीते हैं, और किस जीवट के साथ और किस हिम्मत के साथ में वो लोग सब प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, वही थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा है। और कविता के अंत में एक छोटा सा भाव है पर्यावरण के प्रति। कुछ लोगों ने, राजस्थान में तो वैसे ही वृक्षों की कमी होती है,
तो किस तरह से वृक्ष बचाने में अपना योगदान दिया है उसके बारे में थोड़ा उल्लेख है। मैं समर्पित करता हूँ पूरे इसको, आज की सभा को। तो प्रस्तुत है मेरी कविता, शीर्षक है रेतीले घरों की धरती। रेतीले धोरों की धरती, रेतीले धोरों की धरती, बरसों तक रह जाती परती, रेतीले धोरों की धरती। हे धरती धोरों की, मीठे मोरों की, अलबेले वीरों की, रणबांकुरे शूरों की, रेतीले धोरों की धरती। स्वर्णिम आभा है रेत कणों की, स्वर्णिम आभा है रेत कणों की, थार मरुस्थल या भूहोरण की, थार मरुस्थल या भूहोरण की, रूख बहुत ही कम होते हैं। वृक्ष को राजस्थान में रूख बोलते हैं। रूख बहुत ही कम होते हैं, जीवन के रक्षक होते हैं। कहीं अगाड़ी कहीं पिछाड़ी, कहीं अगाड़ी कहीं पिछाड़ी, यदा कदा दिख जाती झाड़ी, यदा कदा दिख जाती झाड़ी। प्यासी धरती भरी दोपहरी आग उगलती। मई जून में रेगिस्तान की दोपहरी में अगर आप चले जाएं तो वास्तव में वो आग उगलने का सीन होता है। प्यासी धरती भरी दोपहरी आग उगलती, रात हुए पर ठंडी होकर रेत है गलती, रात हुए पर ठंडी होकर रेत है गलती। जीवन जीने के जीवट की है मजबूत रवानी, जीवन जीने के जीवट की है मजबूत रवानी। दूर दूर से पानी लाने को कितनी है मजबूर जवानी, दूर दूर से पानी लाने को कितनी है मजबूर जवानी। गांव गांव और हर ढाणी की है यही कहानी, गांव गांव और हर ढाणी की है यही कहानी। कई कोस पर हाथ गहरे मुश्किल से मिलता पानी, कई कोस पर कई हाथ गहरे मुश्किल से मिलता पानी। रंग बिरंगे वस्त्रों में घर से निकली है सखियां,
रंग बिरंगे वस्त्रों में घर से निकली है सखियां, मिलजुल करती हंसी ठिठोली करती है मीठी बत्तियां। घर से बाहर निकलने का ये एक बहाना होता है, एक अवसर होता है, तब एक दूसरे से दुख की बातें करती है सखियां। रंग बिरंगे वस्त्रों में घर से निकली है सखियां, मिलजुल करती हंसी ठिठोली करती है मीठी बत्तियां। इंद्र देव की पूजा करती बरसे बादल उन्हें बुलाती, इंद्र देव की पूजा करती बरसे बादल उन्हें बुलाती। लेरी ते घट यानी रीता बर्तन, लेरी ते घट पनघट पर आ गागा कर है शगुन मनाती। इंद्रदेव का स्वागत करते हैं और शगुन मनाते हैं कि मेह बरसो जल्दी बरसो। लेरी ते घट पनघट पर आ गागा कर है शगुन मनाती। लाल मिर्च की चटनी संग में केर सागरी का ओ साग, लाल मिर्च की चटनी संग में केर सांगरी का हो साग। मोटा खाए मोटा पहने उसको माने अपना भाग, मोटा पहने मोटा खाए उसको माने अपना भाग। इस धरती पर रूख जनावर की रक्षा हेतु, वृक्ष और जानवर की रक्षा के लिए किस तरह से वहाँ के एक विशेष समुदाय ने अपना बलिदान दिया उसके बारे में है। इस धरती पर रूख जनावर की रक्षा हेतु विष्णोइयों का प्राण हवन, विष्णोइयों का प्राण हवन। केंजड़ली के 363 लोग लुगाई ने मिलकर होम किया जीवन। 1730 में आज लगभग 300 वर्ष पूर्व अमृता देवी और उनकी 3 बेटियां नोई समुदाय के 363 लोगों ने वृक्षों से चिपक करके और अपना बलिदान दिया। वहाँ का जो स्थानीय राजा था वो अपना भवन बनाना चाहता था और उस भवन के लिए ईंटें पकाने के लिए वह वृक्ष काट रहा था, लकड़ी से ईंटें पकती और फिर उसका भवन बनता। तो उसके विरोध में पहला चिपको आंदोलन मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का आज से 3 सदी पहले हुआ, उसी का एक वर्णन है। तो इस धरती पर रूख जनावर की रक्षा हेतु विष्णोइयों का प्राण हवन। खेंजड़ली के 363 लोग लुगाई ने मिलकर होम किया जीवन। है धरती धोरों की मीठे मोरों की, ये धरती धोरों की मीठे मोरों की, अलबेले वीरों की रणबांकुरे शूरों की, अलबेले वीरों की रणबांकुरे शूरों की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर।
और आप तो मुझे वापस अपने पास ही राजस्थान जल्दी से बुला लीजिए मौसा जी। मैंने आज साड़ी भी गंगौर है, इसलिए आज मैंने सुबह से ये लहरिया पहना हुआ है, और केर सांगरी और चटनी और क्या क्या, मतलब। और आपने ये सही बोला कि गांव की औरतें जब पानी भरने जाती हैं ना, तो वो उस वक्त अपने दुख सुख की बातें करती जाती हैं। उनके लिए वो एक रिचुअल है। इट्स नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू फेच वाटर, इट इज ऑल्सो अबाउट दैट फीलिंग ऑफ सिस्टरहुड एंड कम्युनिटी लिविंग। उसके लिए भी मैंने 2 लाइंस लिखी थी कभी। चल पनघट पे हो आए सखी, चल पनघट पे हो आए सखी, दुख सुख की बातें कर आ सखी, पानी भरने के बहाने एक दूसरे की आंखों का पानी पहुंचाए सखी। तो ये भी एक, यू आर माय इंस्पिरेशन, ये भी एक ट्रेडिशन जी। तो ये इस तरह से पहले के जमाने में, और आज भी जहां जहां पानी नहीं आता है, जहां औरतों को पानी भरने जाना पड़ता है, तो उनके लिए वो एक बोझ नहीं, बल्कि एक अपने आप का बोझा हल्का करने का एक माध्यम हो जाता है। सर पर बोझ होता है, लेकिन दिल का बोझ उतर जाता है जब वो पनघट जाती हैं या पानी लेने जाती हैं। और ये बहुत खूबसूरत कविता थी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि दीपाली के यहाँ भी आज नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो मैं दीपाली को जल्दी से बुला लेती हूँ। और दीपाली भी कभी कभी जुड़ती है हमारे साथ, उनके पीछे पड़ना पड़ता है। आइए दीपाली। इनवाइट किया आपने, बहुत बड़ी बात है। और सबकी पोएट्री सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा तो लग रहा है, बट डर भी लग रहा है, इतने सबने अच्छी बोली है। मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने आज जो कविता लिखी है, बेटे ने मुझसे सवाल किया था कि आप कविता क्यों लिखती हो मम्मी। तो मैंने खुद ने भी सोचा कि हाँ, हम कविता क्यों लिखते हैं, सोचना चाहिए कि मैं कविता क्यों लिखती हूँ। तो मैंने कविता तब लिखी थी, मेरी कविता है, जब तपती सी धूप में एक माँ मजदूरी करती है, जब तपती सी धूप में एक माँ मजदूरी करती है, जब उसकी ममता को कोई मजबूरी छलती है, जब उसकी ममता को कोई मजबूरी छलती है, उसके पसीने की फिर भी जब कीमत कम लगती है, हक उसका उसे दिलाने को, उसके मन में साहस भरने को, मैं कविता एक नहीं रचती। भ्रष्टाचार के नाम पर जब कमाई मेहनत की लूटी जाती है, भ्रष्टाचार के नाम पर जब कमाई मेहनत की लूटी जाती है, पर्चे खरीदकर जब शान डिग्री की बढ़ाई जाती है, जब किसी युवा के सपनों की बलि चढ़ाई जाती है, भविष्य उसका मजबूत बनाने को, उम्मीद उसकी जिंदा रखने को, मैं कविता एक नहीं रचती हूँ। कहीं किसी बेटी से जब हक शिक्षा का छीना जाता है, कहीं किसी बेटी से जब हक शिक्षा का छीना जाता है, जब चूल्हे चौके में भविष्य उसका रोका जाता है, जब शादी के पवित्र बंधन को जबरन उस पर थोपा जाता है, इरादे उसके मजबूत बनाने को, उसके सपनों में रंग भरने को, मैं कविता एक नहीं रचती। जब मन मेरा बोझिल होता है, बिना वजह जब ये दिल रोता है, जब मन मेरा बोझिल होता है, बिना वजह जब ये दिल रोता है, बिना हंसे जब ये दिन कटता है, खुद को यूं ही खुश करने को, इस दिल को खाली करने को, खुद को यूं ही खुश करने को, इस दिल को खाली करने को, मैं कविता एक नहीं रचती हूँ, मैं कविता एक नहीं रचती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। कविता आप क्यों रचती हैं, मतलब इमेजिन, हम हाँ, सोचते नहीं है, वी जस्ट राइट। हाँ, वो उसने, मेरे बेटे ने मुझसे सवाल पूछा, आप कविता, जब मैं मदर क्लब से जुड़ी भी नहीं थी, तो कहीं देती भी नहीं थी पोएट्री, तो उस वक्त मम्मी आप डायरी में लिख कर रख दो, तो क्यों लिखते हो आप, क्या रीजन होता है, लोग पोएट्री क्यों लिखते हैं। तो मैं उसको बताना चाहती थी कि पोएट्री से ही समाज में चेंजेस आते हैं, जो समाज की बुराइयां है वो सारी पोएट्री में हम उसको बता सकते हैं कि ये चीजों को चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। So Vanessa, what she just read is that why her kid asked her that why do you write poetry? So she thought about it and she wrote about why she writes, and what she feels is that poetry is one way
of bringing change in the society. And I think every poetry that has been read so far, and I'm sure will be read, has a message which is so strong and powerful that if you actually sit down to ponder over it, a lot of changes can be made by just our words. I think that's amazing. Back to you, Ila. अब हम चलेंगे गुलाबी नगरी जयपुर, और मेरी बहुत नाजुक सी दोस्त रश्मि सांगानेरिया, जिनकी बहुत मीठी आवाज है, और मैं कभी चाहती हूँ कि रश्मि अपनी पोएम कभी गा के सुनाए हमको। आज तो नहीं सुनाई, मुझे पता है। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि। थैंक यू, और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज तीज है, जैसे कमल जी निमोड़िया साहब ने बताया कि आज हमारे यहाँ गणगौर, जयपुर में गणगौर बहुत अच्छी मनाई जाती है और तीज की सवारी निकाली जाती है। और एक बहुत ही अच्छा सा लोकगीत है जो शायद सभी ने सुना होगा कि भंवर माने पूजन द्यो गणगौर। ये सुना होगा, लोकगीत है, लेकिन एक 2-4 लाइनें मैं आपको ऐसे ही बोल के बताती हूँ। गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती, चूनर को में व्रत कियो, रानी पूजे राजा ने, मैं पूजा महका सुहाग ने। आज का ये व्रत अपने सुहागिन में अपने सुहाग के लिए करती हैं, और जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो अच्छे सुहाग मिले इसके लिए करती हैं। तो ये राजस्थान की ये एक परंपरा है। तो सभी को हैप्पी तीज। आज के दिन यहाँ घेवर खाया जाता है, तो आप लोग सब घेवर खाने के लिए इनवाइटेड है। नाउ अब मैं आती हूँ आज की पोएट्री डे पर। तो पोएट्री इस वर्ड को लेकर के मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, बहुत छोटी सी पोएम है। पोएट्री उन ख्यालों को जज्बातों को, वादों को, यादों को, उन जो बीत गए, उन ख्यालों को, जज्बातों को, वादों को, यादों को, वफाओं को, खिलाफतों को, रिश्तों को, स्वार्थों को, सुलझे को, उलझे को, कहीं को, अनकहीं को, ऐसे कितने उनके धागों को, जब अंतस के बारीक छेद में पोया जाता है, तो बीते हुए जिए वक्त का कल्पना में बनता जाता है एक ट्री। बीते हुए जिए वक्त का कल्पना में बनता जाता है एक ट्री, वहीं से निकलती है पोएट्री। क्या बात। क्योंकि तने सी जिंदगी की हर शाख अलग होती है, कोई हरी कोई भीगी आंख होती है, जिस शाख पर फुदक कर बैठ जाता है मन, उसी के मौसम में ले लेता है एंट्री, वहीं से निकलती है पोएट्री। बहुत सुंदर। मन के संदूक में तह लगी बातों का, रातों का, ख्वाबों का, ख्यालातों का, खुशियों का, सौगातों का खजाना होती है पोएट्री। मन के संदूक में तह लगी बातों का, रातों का, ख्वाबों का, ख्यालातों का, खुशियों का, सौगातों का खजाना होती है पोएट्री। मेरे लिए तो जीवन के तने पर
मेरे लिए तो जीवन के तने पर अलग अलग शाखों का ट्री है पोएट्री। अलग अलग शाखों का ट्री है पोएट्री। थैंक यू। जब भी रश्मि आती है तो वो बहुत अनोखे अंदाज में कविता सुनाती हैं और उनकी कविता लिखी भी एक अलग अंदाज में है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाई उस तरीके से कभी, तो मैंने कोशिश छोड़ दी कि हमारी दोस्त करती है उस तरह से पोएट्री, तो हम क्यों लिखे वैसे। और वेरी ब्यूटीफुल। सब लोग बताइए कैसी लगी कविताएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अलग वाकई में आपका हमेशा इनका एक अलग ही अंदाज होता है। कैसे ये कई बार संधि विच्छेद करके अपनी कविता को प्रस्तुत करती हैं, कभी राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो आपका एक अलग स्टाइल है लिखने का जो बहुत अच्छा है। और एक पढ़ के ही समझ में आ जाती है कि वो रश्मि जी ने लिखी है। हाँ, बिल्कुल, ये इनकी ब्रांडिंग है सही में है ना। So now I would like to invite Sarda Iyer with a few lines that I've written, keeping her in mind, and most of us in mind rather, but mainly keeping Sarda in mind. Waiting in the alley for new beginnings, often forgetting that new beginnings start with me. Why do I wait for good times when good times reside in me? Why do I go about knocking unseen doors while the key lies with me? I shouldn't dream of changing the world around me. I shouldn't dream of changing the world around me unless I change the old me. So Sarda renews herself every day at every given chance. Be it her experiment with music or her fitness regime or her traditional rituals that she follows at home. So hats off to you, Sarda. Thank you. Thank you. Proud of you, and we are very eager to listen to what you have to say today. Thank you. Thank you. Good evening to you all. And as always, I thank Motherhood Club for giving me an opportunity, and I'm feeling so proud to be on this platform with you all. And today I have written a poem, the topic, the impact of black and white in our lives. Generally, we all love all colors and all combinations. And generally, when we play Holi also, we love to play with colors. Not only that, even when we go for any occasion, want to wear for any occasions or any festival, or want to party with people, we always used to choose our own choice of colors. But why I particularly chose black and white? Because black and white has got, as you all know, they are like a twins. Without that we cannot survive in this world, because the day rises and sunsets again, we go night to sleep again, the day cycle is on and on and on. So based on that, I have written how it impacts in our life. So here it goes. I hope you can hear me all. Yes. Okay. We consider white as a positive symbol, but we carry a black umbrella in the sun. We are sure white brings peace, but we prefer dresses in black to white. We know we feel cool wearing white, but we choose less as it may get soiled. We like the brighter side of the day, but we love to party only at night. We like to be in the sun by wearing sunglasses, but we enjoy watching stars and the moon in the night sky. We write on a white sheet with black pen, but the one written on the black sheet with white pen catches everyone's eyes. We admire fair complexioned people, but the black mole on the white skin adds more beauty. White dove symbolizes peace, but when black crow is fed, it indicates that the soul of the loved ones is now satisfied and is at peace. However beautiful is white, still we search for that black spot. Hence, how we envision life is everything, because the two are inseparable. Thank you so much. Amazing. Thank you. Thank you so much. Amazing. Dark complexion people not being favored, but that black mole enhances the beauty. Beautiful.
lovely lines are. Thank you so much. Thank you. मैं सर एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये जो है ना रोज सुबह इंस्पायर करती है। तो और जैसे कि इला ने बोला कि चाहे वो ट्रेडिशन हो या जो भी हो, तो आप हमेशा ऐसा करते रहिए और हम जैसे बहुत सारे लोगों को रोज इंस्पायर करिए। I try my level best. Actually मैं ज्यादा टाइम भी देना चाहती हूँ लिखने में, सब कुछ करने में, पर somehow ये बोलते हैं ना like that is a break, कुछ लिखने नहीं पाती हूँ, कुछ सोच नहीं पाती हूँ। पर पता नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट मेरे दिमाग में ऐसे ही आया है, मैंने कई बार सोचती हूँ एंड एक्चुअली इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ लक। मेनी पीपल सेज मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, ब्लैक बहुत लक लेके आता है। सेम इज विद द व्हाइट आल्सो, बट व्हाइट जनरली कंसिडर्स ऑलवेज अ कॉमन थिंग बिकॉज इट spreads lot of soothes in you and also it brings lot of peace when whoever wears white उसको देख के बहुत मन अच्छा लगता है, एकदम हमको शांति मिलती है। पर ब्लैक में हमेशा नजर में इतना अच्छा नहीं आता है, पर आप सोचेंगे तो ब्लैक भी बहुत सारा we actually use lot of मतलब black thing in our life, but actually it impacts also. Sometimes it brings good luck, some people it brings bad luck also. Maybe it's all the thought, but I can see it actually affect my life. And whenever I wear black, I do not know why, it's an indication that something is going to happen. I hardly wear black dresses, but whenever I wear any black, even if I wear a top or a pajama, कुछ भी मैं पहनती हूँ, तो definitely brings something in my this thing, and I have noticed n number of times in my life. So I always maximum avoid to wear black because I always feels everything should happen good around me. So we will actually have a session on color therapy. Yeah. I am in talks with someone, so she will be talking about colors, their importance, and how colors heal us from within. So वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। और अभी मैं बुलाना चाहूंगी रेखा को, जो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। और रेखा, मैं आपको बता दूं कि मैं 1.5 घंटे के लिए आपके एयरपोर्ट पे थी परसों रात को। ये तो गलत बात है कि आप यहाँ थे और मुझसे बिना मिले चले गए। हाँ, मैं बाहर नहीं आ सकती थी, मैं तिरुपति से लौट रही थी, मेरी ट्रांजिट में थी मैं वहां पर। तो नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर आई एम मीटिंग यू, है ना? नेक्स्ट टाइम श्योर। चलिए, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज कविता की बात हो रही थी, कविताएं बहुत अच्छी सभी ने सुनाई हैं। स्पेशली लक्ष्मी जी ने जो कविता सुनाई वो मुझे बहुत इम्प्रेस कर गई। जैसा कि हम लोग आज पोइट्री सेलिब्रेशन डे बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने अपनी जो कविता थी सबसे पहले जो डायरी में लिखी, अपनी लाइफ की पहली कविता जो डायरी में मैंने लिखी, वो कविता के ऊपर ही लिखी थी मैंने। तो चलो उसी को आज मैं सुना देती हूँ, ठीक है? कविता ऐसी है, उसका शीर्षक भी मैंने ये दिया कि मेरी कविता कहाँ खो गई। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने एक कागज पे अपनी कविता लिखी थी, जो वो कागज खो गया, तो उसी के ऊपर ही मैंने अपनी एक कविता लिखी। तो थोड़ी सी कविता इस प्रकार है। भावनाओं से भरी जतन से लिखी, भावनाओं से भरी जतन से लिखी, व्याख्या थी वो मेरे विचारों की, कल्पना थी वो मेरे उड़ानों की, मेरे सपनों को तोड़ कहाँ चली गई, मेरी कविता कहाँ खो गई। क्या पेपर खो गया था तो मैंने उसी पे कविता बनाई थी ये। कृति थी मेरे छंदों से सुसज्जित, कृति थी मेरी छंदों से सुसज्जित, रस व मनोवेग से पूर्ण, मनुष्य भावों की मूर्ति थी, मनुष्य भावों की मूर्ति थी, दया प्रेम से भरी शब्दों की नदी, मेरे अंतःकरण की एक कड़ी थी, निष्ठुरता की गली में कहाँ चली गई, मेरी कविता कहाँ खो गई। फूल सी खिली थी, फूल सी खिली थी, खुशबू सी महकी थी, चमक रही थी ऐसे जैसे कोई तारा हो, बह रही थी ऐसे जैसे ढूंढ रही किनारा हो, क्यों अंधेरों की आगोश में चली गई, जिंदगी के कई गुणों से युक्त, मेरी कविता कहाँ खो गई, मेरी कविता कहाँ खो गई। तो एक छोटी सी कविता, मेरी कविता पोएट्री डे के सेलिब्रेशन के लिए सभी की कविताओं ने बहुत अच्छा इम्प्रेस किया मुझे, सबकी कविताएं अच्छी थी। धन्यवाद। कहाँ खो गई आपकी कविता? वापस कविता मेरी खो गई, उसी के ऊपर एक कविता और बन गई और वहां से मुझे एक राह मिली कि मैं कविताएं लिखूं। तो बस वो सफर मेरा जारी है अभी तक। क्या बहुत सुंदर, खूब लिखो, खूब लिखते रहो। कविता से हमें नई जरूर मैम जी।
खोई कविता से नई कविता मिलना हमारे लिए अच्छा हो गया ना। हाँ हाँ Yes. बिल्कुल। तो अब हम चलेंगे भीलवाड़ा और वहां से हम पल्लवी वाचानी को लेकर आएंगे और बहुत सुंदर कविता लिखती हैं और she has that calm exterior which I am very sure that she is very calm from within also, and her poetry displays that calmness. Most welcome Pallavi, आइए। नमस्कार एवरीबॉडी। एंड सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रि की, हिंदू नववर्ष की, और आज राजस्थान में गणगौर है, उन सभी की मैं बधाई देती हूँ। और इला जी, एकता जी, मैं पिछली 2 बार से कोशिश कर रही हूँ आने की, मैं अपना नाम भी देती हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन यू ऑल, सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। Not at all. एंड Okay, sometimes हो जाता है आज कभी भी कभी। एक्चुअली आज भी मैंने ज्वाइन किया तो वो ऑडियो नहीं आ रहा था पहले, सो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं आज भी हो पाएगा कि नहीं, बट थैंक यू नहीं, आज तो फॉर। बहुत लोगों की कंप्लेंट आई है कि नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि नवरात्रि है तो मैंने कुछ टाइम पिछले नवरात्रि में एक नवरात्रि के ऊपर ही एक छोटी सी कविता लिखी थी, तो वो मैं आज आप सबके सामने पेश करना चाहूंगी। नवरात्रि। नवरात्रि का प्रथम दिवस समर्पित माँ शैलपुत्री को, हिमालय पुत्री रंग नारंगी, हिमालय पुत्री रंग नारंगी, जागृत करे मन मस्तिष्क को। द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचरणी, द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचरणी, स्वाधिष्ठान चक्र का करे ध्यान, स्वाधिष्ठान चक्र का करो ध्यान, संयम तप वैराग्य विजय, देती है माँ सबको दान। स्वर्णिम काया 10 भुजाधारी, स्वर्णिम काया 10 भुजाधारी, मस्तक पर जिनके अर्ध चंद्राकार घटा, यश कीर्ति सम्मान की दात्री, तृतीय दिवस पूजो माँ चंद्र घंटा। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति, माँ दुर्गा की चौथी शक्ति, ब्रह्मांड किया उत्पन्न माँ कूष्मांडा, करे नाश रोग शोक सब संकट, करे नाश रोग शोक सब संकट, दे आयु यश बुद्धि का दान। मोक्ष के द्वार खोलती परम सुखदायिनी, 4 भुजा धारण करती माँ स्कंद माता, नवरात्रि के पंचम दिवस पर, नवरात्रि के पंचम दिवस पर इच्छा पूर्ति करने को पूजी जाती माता। कात्यायनी बन आदि शक्ति जन्मी, माँ दुर्गा का छठे स्वरूप में पूजी जाती, समस्त शोक संताप भय दूर भगाती, समस्त शोक संताप भय दूर भगाती, जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट कर जाती। श्याम वर्ण, श्याम वर्ण और रौद्र त्रिनेत्री माँ कालरात्रि, श्याम वर्ण रौद्र रूप त्रिनेत्री माँ कालरात्रि, अभय मुद्रा बिखेरे, अभय मुद्रा बिखेरे, शुभकारी कहलाती। दैत्य दानव राक्षस सबको वे मार भगाती, दैत्य दानव राक्षस सबको वे परे भगाती, सप्तम रूप माँ दुर्गा का सप्तम दिवस में पूजी जाती। शंख चक्र व कुंद समान, शंख चक्र व कुंद समान, गौर वर्ण जो पाती, महागौरी के रूप में 8वें दिवस पूजी जाती। शीघ्र विवाह कर मन चाहे साथी कावर, जो ध्याती सब कल्याण व पाती। नवम दिवस नवमी, नवम दिवस नवमी पर्व, नवरात्रि पूर्ण हो जाती, भगवती का नवा स्वरूप
ले माँ सिद्धिदात्री आती। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को पूर्ण जो करती, सभी देवियों को समाहित कर अपार वैभव दे जाती। सभी देवियों के रूप को समाहित कर अपार वैभव दे जाती। थैंक यू। बहुत अच्छे है, बहुत सुंदर। आपने तो विमेन्स डे, नवरात्रि सबको एक साथ ही कर दिया। बहुत ही सुंदर, सच में। ब्यूटीफुल। तो आप हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता तिवारी जी भोपाल से। आज थोड़ा बिजी थी इसलिए लेट जुड़ी हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज वो जुड़ेंगी जरूर, क्योंकि इनकी कमी काफी समय से खल रही है हमको मदरहुड क्लब पर। सुनीता जी आइए, आज आप क्या सुना रही हैं हमको? जी मुझे नमस्कार। लगता है आपको हमारी याद ही नहीं आई इतने दिन। आपको हमारी याद ही नहीं आई इतने दिन। बहुत याद आई, लेकिन इतनी व्यस्तता रही कि आ नहीं पाए मंच पे मैडम। जी नमस्कार जी, बहुत स्वागत आपका। मदरहुड क्लब का बहुत बहुत आभार करती हूँ। सभी आमंत्रित रचनाकारों, साहित्यकारों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं माँ की आराधना में एक भजन लेकर आई हूँ, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जी स्वागत। माँ चरणन में रे मन मेरे, कर ले तू विश्राम, पता नहीं कब हो जाएगी जीवन की शाम, कर ले तू विश्राम। आज तुम्हारा कल उसका था, ये संसार हुआ न किसी का। आज तुम्हारा कल उसका था, ये संसार हुआ न किसी का। जीवन भर जो गठरी बांधी, अंत समय आए ना काम। जीवन भर जो गठरी बांधी, अंत समय आए ना काम, कर ले तू विश्राम। अम्ब चरणन में रे मन मेरे, कर ले तू विश्राम। मात पिता भाई सुतदारा, स्वर्ण भूमि सम्मान अपारा। मात पिता भाई सुतदारा, स्वर्ण भूमि सम्मान अपारा। देह जली सब छोड़ चलेंगे, कुछ ना अपना मान, कर ले तू विश्राम। देह जली सब छोड़ चलेंगे, कुछ ना अपना मान, कर ले तू विश्राम। अम्बे चरणन में रे मन मेरे, कर ले तू विश्राम। जन्म मरण की पीड़ा भारी, छाई घटा रात अंधियारी। जन्म मरण की पीड़ा भारी, छाई घटा रात अंधियारी। अम्बे कृपा से मुक्ति मिलेगी, धरो नित्य मां ध्यान। अम्बे कृपा से मुक्ति मिलेगी, धरो नित्य मां ध्यान। मां चरणन में प्रेमन मेरे, कर ले तू विश्राम। किसे पता कब हो जाएगी
इस जीवन की शाम कर ले तू विश्राम। जय माता दी। जय माता दी। बहुत सुंदर, आपकी आवाज बहुत मीठी है। मिट्टी में भीगापन होता है ना, उसको ऐसे ऐसे करो तो वो जो आवाज निकलती ना, वैसी आवाज लग रही थी, भीगी मिट्टी की आवाज। क्या बात है, बहुत खुशबू भी है उस आवाज में। खुशबू भी आ रही थी। तो चलिए, now I would like to invite our founder Saiba, Ekta Sehgal Malhotra, to read her poem, because she is going to like break a bomb now. Tadak. अब किसके ऊपर डंडा है बताओ? चलो, today I will go against your wish. गुस्सा नहीं है क्योंकि एकता की कोई नई कविता नहीं आई है। जब एकता में बहुत गुस्सा आता है ना, तो एकता कविता लिख डालती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कई चीजों पे गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि किस चीज को उठाया जाए और किस पे लिखा जाए। लेकिन आज मैंने सोचा कि बहुत सारे सोशल मैसेजेस आ गए हैं, आई शैल रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट। एंड आज मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ, तो मैं कोई बम फोड़ने वाली हूँ। तो पहले तो मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे डालती हूँ, मैं हर बार भूल जाती हूँ। तो यस, मैं डालने वाली थी अभी तुमको। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो मैं क्योंकि वर्ल्ड पोएट्री डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे व्मेन के डिफरेंट फॉर्म्स एंड ड्रीम्स एंड शैडोज एंड ब्लैक एंड वाइट और इन सब चीजों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो आई वांट टू रीड आउट अ पोएम which I wrote for someone who has always motivated me to write a poem. And I think no better way to express my gratitude to that person in the form of a poetry on World Poetry Day. क्योंकि अगर मेरी पोइट्री एक लेवल से दूसरे लेवल पे गई है, and I hope गई है, तो मैं ये पोएम उनके लिए पढ़ूंगी। All right. God felt there is a need to help me stay on my feet. He looked around. He looked around, saw only a sister can fulfill this need. He again saw none from the same mother. I have only one elder brother. He looked around, found me one from another mother. He looked around and found me one from another mother, a friend-like sister, the sister who believes in her, the sister who guides her, mentors her, her agony aunt, who hears all her rant, who gives new dimensions to all that she wants. Thank you, God, for the friend-like sister from another mother. You indeed know it all, when to be around in another form, today, tomorrow, and forever. So who this poem is for, she knows it. I am not going to reveal that name, but I thank her for helping me in maturing my poetry, both in Hindi and English. So that's my small dedication for her. Thank you. Beautiful. Thank you. तो अब आप इला कुछ सुनाएंगी? बबीता कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी बबीता। शीजिला अनम्यूट कीजिए। क्या सुना रही हैं आप इला आज? मैं आज आप बम फोड़ने वाली हैं? आज मैं बम फोड़ देती हूँ। चलो ठीक है, चलिए चलो हाँ, आज मैं बम फोड़ देती हूँ। आइए। तो नवरात्रे भी चल रहे हैं और ये जो हमने मंथ जो है डेडिकेटेड वुमेन को ही है, तो महिला शक्ति, मातृ शक्ति जिसको बोलना चाहिए, तो एक माँ होकर मैं उस देवी माँ से कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, क्योंकि देवी माँ भी तो तकलीफ में होती होंगी कभी ना कभी। सुनो ना माँ, सुनो ना माँ, जब तुम पीर जगत की देखती होगी, क्या तुम भीतर ही भीतर ना रोती होगी? सब तुम्हारी शरण में आकर अपने अपने दुखड़े रोते हैं, सब तुम्हारी शरण में आकर अपने अपने दुखड़े रोते हैं। तुम अपनी व्यथा कहने किसके पास जाती होगी? किस तरह तुम अपने हृदय में उठते ज्वार को शांत करती होगी? किस तरह तुम स्वयं को बिखरने से बचाती होगी? तुम्हारे बच्चे तो दुख में रो रो कर तुम्हें पुकारते हैं,
तुम्हारे बच्चे तो रो रोकर दुख में तुम्हें पुकारते हैं, क्या तुम भी कभी कातर होकर किसी को पुकारती होगी? सुनो न माँ, सुनो न माँ, सुनो न माँ, तुम अपनी समस्त शक्ति संसार पर लुटा देती हो। तुम अपनी समस्त शक्ति संसार पर लुटा देती हूँ। सोचती हूँ अक्सर तुम स्वयं के लिए शक्ति कहाँ से जुटाती होगी। सुनो न माँ, जब तुम पीर जगत की देखती होगी तो क्या तुम भीतर ही भीतर ना रोती होगी? धन्यवाद। Very pertinent questions. I think we all ask these questions to ourselves also. नानी को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एगनी आंट्स होती हैं, एगनी अंकल नहीं होते हैं, तो Yes. when women have problem, they always reach out to another woman, or they just keep piling it within themselves. So I think each of you have such strong, beautiful messages that you all have conveyed, and I think we have a lot to learn from each other, and Yes. further write more and more, and bring that change through your poetries, because I'm sure there will be a change which collectively we can. And I think that's where these story prompts and the poetry prompt, the creative challenge that comes, and where each of us on one topic bring out such diverse inputs. I think it's amazing. It's a treat, for our eyes to read, for our mind, that why didn't I think like this? Or, oh, there could be another perspective. I think that's the beauty of poetry, or even stories for that matter. Absolutely amazing. I just love every poetry that was read out here. मैं कुछ कहना चाहूंगी जी। मैं थैंक यू मदरहुड क्लब का तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके हर सदस्य से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और एक ऐसा मंच जिसने मुझे बहुत अपने आप को उभारने का मौका दिया। लेकिन जैसा आपने कहा आपकी पोएट्री में एकता, वैसे ही मैं तो खुलेआम मतलब बहुत अच्छे से इला के लिए कहूंगी कि मैं लिखती थी, लेकिन मेरे सफर की शुरुआत जो है इला ने कराई, और मेरी पोएट्री को भी एक मुकाम पर इला ने पहुंचाया। इसलिए थैंक यू इला। और जैसे श्रद्धा को हम रोज देखते हैं और बहुत इंस्पायर होते हैं, ऐसे मदरहुड क्लब के हर सदस्य से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है और हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। पता नहीं कहाँ से 35 साल पुरानी दोस्त ने पता नहीं कहाँ से खोज लिया और इस मंच से जोड़ दिया। अभी तक जुड़े हुए हैं और रोज एक नई चीज सीख लेते हैं यहाँ से। थैंक यू इला। और एकता तो थैंक यू एवरीवन एक्चुअली। और ये एकता तो वो चीज है, वो धागा है जो सबको जोड़ के रखती है। हाँ। और मैं उसके साथ फेविकॉल बन के चलती हूँ। बिल्कुल एकता वो धागा है। हाँ। एकता को तो मैं एक अता ही कहती हूँ। अता मीन्स नेता। नाम ही एकता से सबको जोड़ रखा है। मैं बार बार मदरहुड क्लब का थैंक यू, हर सदस्य का थैंक यू बोलती हूँ। Thank you so much. And now our chief content officer is back. आ जाइए मैडम, आज आप क्या लेकर आई हैं? आ गए मैडम। नमस्कार एवरीवन। सॉरी आज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है। एक तो फेस्टिवल चल रहा है जैसा रश्मि दीदी ने कहा था, गणगौर काफी धूमधाम से सेलिब्रेट हो रहा है, और अभी बस हम तैयारी कर रहे हैं दोबारा गणगौर को पानी पिलाना, और अभी बारात निकलेगी ईसर जी की, तो उसकी तैयारियों में लगी थी और बीच में पावर कट हो गया। आई एम सो सॉरी। आई मिस्ड फ्यू ऑफ द जेम्स एंड द पोएम्स, so I'm going to hear that on the recording after later, and as of now I'll not take much time. एक छोटी सी कविता है मेरी, मैं हिंदी में कम लिख पाती हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, और ये मेरा जो छोटी सी जर्नी है, यात्रा जिसे हम कहते हैं, ये इला दी की वजह से ही शुरू हुई थी। So today this poem is dedicated actually on World Poetry Day to इला दी। बहुत छोटी सी कविता है जिसका मैंने शीर्षक रखा है यात्रा। सुनिएगा। अनवरत अविरल समय की धारा, अनवरत अविरल समय की धारा, स्थान परिवर्तन निरंतर चिंतन धारा, स्थान परिवर्तन निरंतर चिंतन धारा, ठहराव हो किंचित तो मन हो आनंदित, ठहराव हो किंचित तो मन हो आनंदित, मानव मात्र कसमसाए चाहे छुटकारा, कर्मों का फल मिलना है तय,
मन मस्तिष्क की इच्छा मिले अभय। कर्मों का फल मिलना है तय, मन मस्तिष्क की इच्छा मिले अभय। चिंतन मनन और सच्चा सेवा भाव, यही है इस यात्रा का एकमात्र व्यय। इहलोक से परलोक की दूरी, अनेक यात्रा करके होगी पूरी। उसमें से एक छोटी सी यात्रा ये भी है जो आप लोगों के साथ है मदरहुड क्लब पे। इहलोक से परलोक की दूरी, अनेक यात्रा करके होगी पूरी। विश्वास स्वयं पर सदैव रखना, प्रत्येक पड़ाव पर बस हिम्मत रखना। विश्वास स्वयं पर सदैव रखना, प्रत्येक पड़ाव पर बस हिम्मत रखना। वाओ, एकदम स्पिरिचुअल, ब्यूटीफुल। आई थिंक इला को शायद मदरहुड क्लब से जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं, 2.5+ years हो गए हैं, and I feel so happy, and I always keep patting my back for that was one of the best decisions to request her to be on board and take the responsibility as the chief cheering officer and then becoming the co-founder, because I hear it from so many people that she has motivated and impacted the lives of so many. And we are so proud of you, Ila, for doing this. So continue. This evening is not about me, it's about poetry, and I am actually feeling overwhelmed and very, very embarrassed actually. No, you don't need to. Don't feel embarrassed. Lots of gratitude to each of you. Lots of gratitude. मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से लोगों के लाइफ में कुछ बदलाव लाने की मेरे अंदर वो काबिलियत थी। हाँ, जज्बा है। मुझे लगता है I am also कि on among them, you know. Yeah. I am here because of her, Iladi, seriously. Same here, Sarda. Thank you so much. तो एकता, बस 4 लाइंस के साथ एंड करेंगे आज की शाम को, क्योंकि मतलब कमल मौसा जी तो बाय डिफॉल्ट हमेशा हमारे साथ होते ही हैं, बाकी हम सब लेडीज होते हैं। तो आप चारों पिलर्स बहुत मजबूत हो मदरहुड क्लब के। आप 3 तो अभी नजर आ रहे हो, चौथी मोनिका जी, आप चारों ही बहुत मजबूत पिलर्स हो। उनको भी होना था, किसी कारण से नहीं आ पाई है वो। हाँ, तो वो बिल्डिंग बहुत मजबूत है, मतलब पिलर्स इतने अच्छे हैं ना, स्ट्रांग है। ऐसे थोड़ी ना हमने एकता को बिठा रखा है, एकता है सब। Exactly. Let's give it to Ekta ji. Yes. Yeah, you should all say thank you to me because I brought Pooja, Ila and Monica. Yes, actually. तो चलो 4 लाइंस स्त्री के नाम पे। मुझे हैं खुद के पंख फैलाने, मुझे हैं खुद के पंख फैलाने, मुझे नई उड़ानें भरनी हैं, खुद से अपनी पहचान करानी, मुझे कई मंजिलें तय करनी है। न किस्मत को दोषी ठहराना, न किस्मत को दोषी ठहराना, न हालातों पर रोना है, छोटी हो या बड़ी बड़ी हर बाजी मुट्ठी में करनी है, मुझे है खुद के पंख फैलाने, मुझे नई उड़ानें भरनी है। Cheers to each of us at Motherhood Club, be it a man or a woman, because woman के एंड में भी मैन आता है। तो सबके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, और सब लोग खूब खुश रहिए, बहुत सारी कविताएं लिखिए, और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी न किसी एक को जरूर ही अपने साथ खींचिए, उनको लिखने के लिए प्रेरित कीजिए, या वो जो भी आर्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं या जो भी वो क्रिएटिविटी उनके अंदर की है उसको बाहर लाने की कोशिश कीजिए। आज आप सब लोग इला कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कल आप सबको लोग क्रेडिट दें कि बबीता ने मुझे किया, या पल्लवी ने मुझे इंस्पायर किया, या दीपाली ने मुझे इंस्पायर किया। सो दिस इज ऑल sisterhood is all about, and this is all motherhood is all about. So we are all essentially mothers, and cheers to each of us. Cheers to poetry. Cheers. चलिए, थैंक यू सो मच, एंड कोशिश करेंगे कि हम अपने ऑफलाइन इवेंट की भी कुछ रिफ्लेक्शंस फेसबुक पे डालें. लेट्स होप इफ वी आर एबल टू डू सो. But thank you everyone for truly making this poetic evening amazing, and to stay put till the end, to appreciate each other. Thank you so much. And truly, sisterhood, brotherhood, motherhood is all visible at Motherhood Club. We are so grateful to all of you. Take care and enjoy the festival time. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you so much.
हम पूजा के यहाँ बारात में आ रहे हैं। आ जाइए बिल्कुल, चाय नाश्ते की तैयारी करिए। Thank you so much.